Guys, good morning. Welcome to you all class 12th student. Today we are going to study about electrochemistry, in which we will cover the topic redox reaction, electrochemical cell, galvanic cell and EMF. Without wasting our time, let's start with the redox reaction. Redox reaction, a chemical reaction in which both the oxidation and reduction taking place simultaneously. Spontaneous reaction. Oxidation is the process in which substance lose one or more electron, and while reduction is the process in which one or more electron are gained by another substance. So in this reaction we are going to study about the redox couple. Without wasting much of our time, let's start electrochemical cell. You all are familiar with the redox reaction, a reaction in which one or more electron loss and by one substance and another substance gain one or more electron, called reduction, and this process is called redox, the reaction in which both oxidation and reduction taking place simultaneously. Electrochemical cell, a device in which the redox reaction is carried out indirectly. A device in which redox reaction is carried out indirectly without direct involvement and change chemical energy into electrical energy. One or more example of electrochemical cell is galvanic cell or voltaic cell. So today once again we are going to define the electrochemical cell, a device which is redox reaction, in which the redox reaction is carried out indirectly and chemical energy converted into electrical energy. It is also called galvanic cell or voltaic cell. So what are the redox couple in galvanic cell or voltaic cell? Redox couple. So the definition of redox couple is, it is defined as having together the oxidized and reduced form of a substance taking part in oxidation or reduction half reaction is called redox couple. मतलब वे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और क्या करते हैं, आपका या तो वो ऑक्सीडाइज हो रहे होते हैं उसमें या फिर रिड्यूस हो रहे होते हैं, और उससे जो है आपका प्रोडक्ट जो है बनता है हाफ हाफ रिएक्शन जो दो बनते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, रेडॉक्स कपल कहते हैं. तो इस तरह से इसके बाद है गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल. गैल्वेनिक सेल क्या होता है, तो galvanic cell, it consists of two metallic electrode dipped in a electrolyte solution, electrical oxidation और reduction half reaction. इसके अंदर दो चीजें होती है redox couple में. तो हम क्या करेंगे, galvanic cell और voltaic cell क्या है इसको समझते हैं. Galvanic cell, it consists of two metallic electrode dipped in a electrolyte solution, electrical energy is produced as a result of केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस इन दिस सेल. गैल्वेनिक सेल एक डिवाइस है जिसके अंदर में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, वो डीप्ड होते हैं किसमें, मेटल. जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो डीप्ड होते हैं, आपके मेटल इलेक्ट्रोड होते हैं, वो डीप्ड होते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, और उस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन जो है उसके अंदर कैरिड आउट होता है. तो इसे हम कहते हैं गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल. इसके बाद एक और एग्जाम्पल आता है कि डेनियल सेल. डेनियल सेल क्या होता है, इट इज द इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ गैल्वेनिक सेल. डेनियल सेल जो है वो गैल्वेनिक सेल जैसा ही है, लेकिन उससे क्या है, थोड़ा सा ये इम्प्रूव्ड है. इट कंसिस्ट ऑफ जिंक रॉड डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, एक्ट एज अ ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एंड इन रिडक्शन हाफ सेल कॉपर वेसल itself act as a cathode, while the
सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूं, यानी बोथ द सॉल्यूशन आर केप्ट अपार्ट, टेकिंग जिंक सल्फेट इन अ पोरस पुट एंड पुटिंग इन इट इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि दो जो है हमारा सॉल्यूशन होता है, एक में कॉपर सल्फेट जिसमें कॉपर रड इलेक्ट्रोड डिप्ड होते हैं, एक जिंक सल्फेट जिसमें जिंक इलेक्ट्रोड डिप्ड होते हैं, और इस तरह से ये क्या करते हैं कि एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में एक दूसरे में डिप्ड होते हैं, और जैसे ही सर्किट को कंप्लीट करते हैं तो रेडॉक्स रिएक्शन जो है हमारा वो स्टार्ट हो जाता है, और इसी के मदद से क्या होता है आपका कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन जो है वो फर्दर कैरिड आउट हो जाते हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आप रिएक्शन देखें कि सेल रिप्रेजेंट कैसे होता है, एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पर सेल का देखेंगे। रिप्रेजेंटेशन क्या है जरा ध्यान देंगे आप और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम डैनियल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। जेड सॉलिड जो आपका इलेक्ट्रोड है उसका प्लस Cu2 प्लस एक्वस, ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रोड जहां से वो लिबरेट करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो Cu2 प्लस जो है ये रिड्यूस्ड है, और Zn क्या करता है अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो क्या बन जाएगा फर्दर Zn2 प्लस एक्वस, और जो Cu है इसके द्वारा डोनेट इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेंगे, ये बन जाएंगे Cu सॉलिड। ये है हमारा क्या रेडॉक्स रिएक्शन है। अब सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो सेल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेड एज सेल, रिप्रेजेंटेड एज सेल को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो भाई Zn सॉलिड सिंगल लाइन, Zn2 प्लस एक्वस, जिसका भी कंसंट्रेशन मान लीजिए, इसका कंसंट्रेशन तो मुझे पता नहीं है लेकिन मैं इसका कंसंट्रेशन क्योंकि एक्वस हो गया तो इसके लिए मैं C1 मान लेता हूं। यह है हमारा सॉल्ट ब्रिज। उसके बाद यहां पर फिर Cu2 प्लस एक्वस, Cu सॉलिड। अब देखिए कि पहले के लिए कंसंट्रेशन C1 मान लिया, दूसरे के लिए हमने क्या कर दिया कंसंट्रेशन इसका C2 ले लिया। तो यह है हमारा रिप्रेजेंटेशन। अब सॉल्ट ब्रिज क्या है इसमें जरा समझिए। सॉल्ट ब्रिज क्या है इस पर्टिकुलर सेट ऑफ रिएक्शन में, सॉल्ट ब्रिज जो है यह है हमारा कि टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ड्यूरिंग द सेल रिएक्शन, कि सेल रिएक्शन के दौरान में जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होगा कोई भी अदर ऑफ द इलेक्ट्रोड में, कोई इलेक्ट्रोड अगर इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करता है, वहां किसी चीज की कमी या अधिकता होती है, तो उसे जो है मेंटेन करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है आपका क्या कहते हैं आप सॉल्ट ब्रिज इस्तेमाल होता है। तो सॉल्ट ब्रिज क्या है, इट इज एन इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब विच कंटेन अ सुटेबल सॉल्ट इन फॉर्म ऑफ कंप्लीट इनर सर्किट, मतलब थिक पेस्ट मेड ऑफ एगर एगर, और इट परफॉर्म द फंक्शन। पहला क्या है, इट कंप्लीट द इनर सर्किट, दूसरा इट प्रोवाइड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन हाफ सेल टू अनदर, और तीसरा है मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द टू हाफ सेल, यानी दो हाफ सेल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी ये मेंटेन करता है। तो यदि हम इसे और भी डिटेल में समझना चाहें तो मैं यहाँ पर आपके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं, शायद इस डायग्राम के मदद से आप बेटरली समझ पाए इसको। तो चलिए हम एक छोटा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये है मान लीजिए हमारा एक पहला पोर्ट है और ये दूसरा पोर्ट है हमारा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच में एक यू शेप्ड ये सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, एक इलेक्ट्रोड ये है हमारा, एक इलेक्ट्रोड ये है हमारा, ठीक है। तो ये जो है हमारा कॉपर है और ये जो है हमारा जिंक है, कॉपर इलेक्ट्रोड और जिंक इलेक्ट्रोड। इसके अंदर में ZnSO4 का सॉल्यूशन है, इसके अंदर में CuSO4 का सॉल्यूशन है आपका पहले से मौजूद। अब होता क्या है कि जो सॉल्यूशन है इसका कंसंट्रेशन 1 m ये भी है,
1 मोलर कंसंट्रेशन ले रहे हैं और ये भी 1 मोलर ही है, ठीक है। तो ये है। अब जब हमने इसको रिएक्शन को स्टार्ट कर दिया, ये है अभी। अब जब हम इसे एक सर्किट से लगा देते हैं, इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं पर्टिकुलर एक्सटर्नल सर्किट से, मान लीजिए यहाँ हमने इसको कनेक्ट कर दिया एक सर्किट से, तो यहाँ पर वोल्ट मीटर जो है वो हमारा क्या करेगा, डिफ्लेक्शन दिखाना। वोल्ट मीटर के रीडिंग जो है वो हमारा यहाँ पर V है हमारा वोल्ट मीटर, वो डिफ्लेक्शन स्टार्ट कर देगा। अब होता क्या है कि इसको हम यहाँ पर पॉजिटिव मानेंगे और इसको मानेंगे नेगेटिव, यानी एनोड कैथोड, ये है। अब होता क्या, जरा ध्यान से समझिए कि इलेक्ट्रॉन जो है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर बनाता हूं यहाँ पे ताकि समझने में आसानी हो जाए। एक बार मैं थोड़ा नीट डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। अब देखिए, अब मैं ये सर्किट जो है इस तरह से इसको कनेक्ट कर देता हूं। ये वोल्ट मीटर है, ये है हमारा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसके अंदर में ZnSO4 1M है, इसके अंदर में CuSO4 1M है। ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये जिंक इलेक्ट्रोड है। अब होता क्या है कि ये वोल्ट मीटर का हमारा रीडिंग है, ये भी वोल्ट मीटर है, और इसके बीच में यहां पर हमने एक सॉल्ट ब्रिज लगा रखा है। ये सॉल्ट ब्रिज है हमारा इसके अंदर, ठीक है। और ये सॉल्यूशन जो है फील्ड है इसके अंदर में, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है एक्चुअली कि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है, यानी कि एनोड से, यानी ये एनोड है हमारा और ये कैथोड है। तो जब एनोड से रिएक्शन स्टार्ट होता है तो होता क्या है कि यहां से इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो है हमारा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो वहीं जो करंट का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन उल्टा होता है, यानी आई जो है हमारा, करंट आई जो है वो इधर फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में हमारा आई जो है वो इधर फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है। तो करंट का डायरेक्शन ठीक इसके रिवर्स्ड है, ठीक है। तो इस दौरान क्या होता है कि जो जिंक सल्फेट है वो टूट जाता है Zn2+SO4- में। ये क्या टूट जाता है, Zn2+ और SO4- में, ये टूट जाता है Cu2+SO4- में। अब होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से आपका निकल के आता है, जरा समझिएगा, तो यहां से ये टूट गलने लगता है, ये Zn2+ फॉर्म करता है, और ये उल्टा हो रहा है। यहाँ पर ये क्या करता है, आपका Cu2+ फॉर्म कर रहा है, Cu2+। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा वो इस Cu2+ से मिलकर के इस पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन ज्वाइन करने लगता है। और क्या होता है कि जब आप इस सेल को अगर क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे तो एक एक चीज जो है आपके जहन में अच्छे से आ जाएगा। होता क्या है कि जब हम इस पर्टिकुलर सेट ऑफ रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जिंक जो है वो इलेक्ट्रोड है जो कि ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिलीज कर रहा है अपना 2 इलेक्ट्रॉन। तो जिंक ऑक्सीडाइज होकर के 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, इस सर्किट से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आया,
यहाँ पर कॉपर 2+ जो पहले से सॉल्यूशन में मौजूद है वो क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन को अपना एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड बना लेता है। इसका मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो जिंक इलेक्ट्रोड धीरे धीरे क्षय होने लग कोल्ड होने लग जाएगा और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो धीरे धीरे इस पे एक डिपॉजिट आना शुरू हो जाएगा, यानी एक तरफ से। और इस तरह से ये रेडॉक्स रिएक्शन कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कि सारा का सारा जिंक जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज ना कर दे। और अब होता क्या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन कि चूंकि इसमें तो एगर एगर और ये सॉल्यूशन भरे होते हैं, तो ये जो है SO4 जो है वो इसमें यहाँ आ जाता है और K+ यहाँ से निकलता है, SO4 फाइनली ट्रेवल करके यहाँ पहुंच जाता है। और यहाँ से चूंकि इसके अंदर Cl और Cl रहता है पोटेशियम क्लोराइड, तो K इधर Cl इधर, जब Cl इधर जाएगा तो Cl इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन इसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने में यानी लाइफ प्रोवाइड करने में इससे मदद आता है। तो सॉल्ट ब्रिज क्या है, इसके फंक्शन भी आपको पता चल गया, सेल डायग्राम जो है हमने आपको बता दिया और रिप्रेजेंटेशन क्या है ये भी हमने आपको बता दिया। तो होता क्या है अब जरा समझिए, यहीं पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको समझने की जरूरत है कि जो सेल डायग्राम है या रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, इसको समझना है हमें बहुत बेहतर तरीके से। अभी जो हमने ये डायग्राम तो आपको समझ में आ गया होगा, तो शुड आई इरेज इट, तो मैं इरेज कर देता हूं। अब जरा सा फिर से जो है हमने जो पहले सेल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन लिखा था जरा उस पर फोकस करते हैं एक बार। मैंने इसको C1 इसको C2 लिया था। अब समझिए जरा क्या हो रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है ना, अब मैं क्या करता हूं, यहां ये लेफ्ट है हमारा और ये है हमारा राइट। जब आप अपनी तरफ से देख रहे होंगे तो आपका जो लेफ्ट है वही लेफ्ट होगा और जो हमारा राइट है वही हमारा, आपका राइट जो वो राइट। तो लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में सॉल्ट ब्रिज के दो तरफ दो चीजें हैं, एक तरफ लेफ्ट है और एक तरफ राइट है। तो जो लेफ्ट वाला पोर्शन होता है हमारा सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में, तो वो क्या होता है एक्चुअली कि हम इसको नॉर्मल याद रख सकते हैं, LON, L से लेफ्ट, O से ऑक्सीडेशन, N से नेगेटिव। नेगेटिव मतलब एनोड, नेगेटिव का मतलब यहां पर क्या है, मैं AN लगा देता हूं, AN लोन। ए से यहां पर क्या है, तो लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन होगा जो एनोड है और वो कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब लोन याद रहेगा तो हमें उसका उल्टा हो गया रिडक्शन, R राइट में रिडक्शन किस पे, कैथोड पे, और वो क्या है पॉजिटिव, RRCP, राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव। तो हमें सिर्फ लोन याद रखना है जिसके थ्रू हम इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो जो ये साइड है हमारा, ये है, ये क्या है, इस तरफ क्या हो रहा है देखिए लेफ्ट में, अब समझिए इसे, ये एनोडिक चैम्बर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, एनोडिक चैम्बर। और ये कहलाएगा आपका कैथोडिक चैम्बर है। तो एनोडिक चैम्बर में हमारा हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोडिक चैम्बर में हमारा क्या होगा, आपका रिडक्शन होगा। और जो डबल पैरेलल लाइन जो दिखा रहे हैं हम इसमें, वर्टिकल लाइन दिखा रहे हैं इसके ऊपर, वो क्या है हमारा सॉल्ट ब्रिज है। ठीक है, तो जो जहां पर C1 और C2 है, ये क्या हमारा मोलर कंसंट्रेशन है। जो भी फार्मूला होगा उसमें रिस्पेक्टिव चीजें उसमें वहां पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो EMF जो है, द वैल्यू ऑफ EMF ऑफ द सेल कैसे लिखे हम इसमें, जरा समझिए कि चूंकि 11 M है तो इसके लिए तो EMF हमें पता होता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर सेल के लिए अगर मुझे EMF लिखना हो, इस वाले पर्टिकुलर सेल के लिए, इस पर्टिकुलर सेल रिएक्शन के लिए लिखना हो, तो इसके लिए तो EMF हमारा फिक्स होता है, 1.1 वोल्ट होता है, ये फिक्स है, पॉजिटिव का साइन होता है ये, इसका EMF हमारा फिक्स होता है। अच्छा, इफ इनर्ट इलेक्ट्रोड लाइक प्लेटिनम इन्वॉल्व, अगर इसमें प्लेटिनम जैसा कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड इन्वॉल्व हो तो हम इसको कैसे समझेंगे या कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो जरा समझिए कि क्या है। तो कब होगा, जब
कहते हैं कि इफ एन इनर्ट इलेक्ट्रोड लाइक प्लेटिनम इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल इट मे बी रिटर्न अलोंग विद द वर्किंग इलेक्ट्रोड इन बीकर या ब्रैकेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वर्किंग इलेक्ट्रोड को हम ब्रैकेट में दिखाएंगे, ये समझ में आ गया। लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। चलिए अब हम बात करते हैं कि वर्किंग इलेक्ट्रोड की बात हो रही थी। जैसे मान लीजिए कि Zn सॉलिड, Zn2+ C1 है हमारा कंसंट्रेशन। मैं यहाँ एक्वस वगैरह नहीं लिख करके अब C1 कंसंट्रेशन दिखा रहा हूं इसमें, ठीक है। और ये सॉल्ट ब्रिज हो गया हमारा। अब चूंकि मैंने क्या कहा था कि एक इलेक्ट्रोड ऐसा होगा तो जो वर्किंग इलेक्ट्रोड होगा ये तो हाइड्रोजन है, तो मैंने H+ लिख दिया। इसका कंसंट्रेशन मान लीजिए क्या है हमारा, C2 है। इसके बाद क्या हो जाएगा कि H जो है आपका H2, इलेक्ट्रोड क्या है भाई इसके लिए, Pt, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो इस तरह से उसे हम जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। वर्किंग इलेक्ट्रोड को हम ब्रैकेट में लेके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक छोटी सी बात है कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ डैनियल सेल। डैनियल सेल की रिवर्सिबिलिटी क्या है, कैसे डैनियल सेल जो है हमारा परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो जरा सा हम इस पे फोकस डालेंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। कहते हैं कि यदि आप कोई भी सेल, जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले जो सेल बनाया था कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट का, तो एक हम एग्जांपल नॉर्मल सा लेते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में भी अगर आप देखेंगे तो आपको इसके फंक्शन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चल जाएगा, तो आप उसकी मदद से कर पाते हैं। नहीं तो फिर मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा आप उसे ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ आपके सामने एक डायग्राम मैंने अभी दिखाने की कोशिश की है। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है और कैसे ये परफॉर्म करता है, ठीक है। तो जरा आप इस तीनों डायग्राम को ध्यान से देखिएगा और इसी से आपको पता चल जाएगा कि क्या है और कैसे वर्किंग करता है ये।